Good morning everyone. Today we will start with a queue data structure. What we have seen previously, it was the stack. We will revise in a short some points or some important points regarding stack. First, it was a linear data structure. It is the collection of primitive data types. So it is called as a non-primitive data structure. There is only one pointer in a stack. It is called as a top, and all the addition and deletion are performed through that point only. That is the single point which is called as a top. Addition into data structure of a stack is called as a push, and removing or deleting data from stack is called as a pop. Before pushing element, we should check whether space available for insertion or not, and before removing the element we will have to check whether any element is present in a stack or not. Adding full stack Adding data into full stack or stack which is full is called as the overflow operation. It will cause overflow operation and condition. And if we are deleting a data which is already empty, means there is no element present in a stack, then it is deleting the element from stack which is already empty is called as a underflow. Then we have seen the different application of a stack, that is recursion, reversing of a string, towers of an eye, and polish notation. Polish notation was what? Writing the operator either before or in between or after the operand. There was three types: infix, postfix, and prefix. Second was recursion, when function calls itself again and again. एक ही function बार बार खुद को कॉल करता है. In that we have seen direct recursion and indirect recursion. Next we have seen reversing of a string. In that we used to read the string from left to right, and as we have completed the scanning of first character, it is getting stored into stack from bottom, that is the 0th position, first, second, third, and as per the property of stack, which is property or which principle, it is LIFO, last in first out. लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से क्या होगा, जो लास्ट में कैरेक्टर रीड करके ऐड किया है, पुश किया है, उसे सबसे पहले पॉप आउट करेंगे, एंड एज पर द सीक्वेंस ऑफ पॉपिंग आउट we will store into another string, so our string will get reverse. And last application was towers of an eye. उसमें क्या था, there were 3 stands and disk. We have to shift all the disk from 1 to 3rd, so we use a buffer type stand, that is B or second stand, and we have performed the push and pop operation. Now we will move on into queue, which is completely different. Queue is linear data structure. In this manner or in this type, it is same like the stack, but main difference is queue is FIFO. Remember, stack is LIFO, last in first out, but the queue is FIFO, first in first out. In queue, elements which were added firstly are those elements which will get deleted or which will get removed from the data structure. But in case of stack, it was the different condition. In stack, we used to do the elements which were added recently will be the element firstly that will be get removed. But in a queue, there is nothing like it. In queue, if you are adding a name a element first, then B, then A will be getting out or getting removed first, then B. Simple example in a real life system is, you can say, when you go to any railway station, there will be a queue, that is the line. One person is standing at the ticket window. If you are
going late, then you will be standing behind him. Then in this case you are the person who came last. ठीक है ना, आप सबसे लास्ट में आए तो आप कभी होगे उसके आगे जा सकते हो क्या? नहीं। जो सबसे पहले इन में गया है मतलब कौन? आपके आगे वाला, वो सबसे बाहर निकलेगा। फिर आप, आपके पीछे मैं आया तो मैं भी लास्ट में निकलूंगा। दैट इज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो कीप इन माइंड that is queue and stack both are linear data structure, but in case of queue it is the first in first out, and in case of stack it is last in first out. There is only one pointer called as a top in a stack, but there are two pointers which are called as a front and rear, which we are studying from now onwards. So we will start with a queue. First there is an introduction of a queue. Queue is a linear list of elements which deletion can take place at one end, called as a front. मतलब अभी आपको अच्छे से याद रखना है कि क्यू में कितने पॉइंट रहेंगे? दो दो दो। स्टैक में कितने हैं? ओनली वन वन। कौन सा? टॉप। और क्यू में कितने हैं? दो। कौन से? एक तो फ्रंट रहेगा और रियर रहेगा। फ्रंट मतलब जहाँ से एलिमेंट आपके रिमूव हो गए, डिलीट हो गए, और रियर मतलब जहाँ से इंसर्शन, एडिशन, एडिंग अ न्यू एलिमेंट विल टेक प्लेस। आपको दिखा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे कि वेरी फर्स्टली we have to make a queue data structure, that is the queue are also called as the FIFO, first in first out list. Since queue will first, कोई भी एलिमेंट जो सबसे पहले इन होगा और सबसे पहले क्या होगा? आउट होगा। ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन ऑफ अ क्यू फ्रंट एंड रियर आर सेट टू -1। इनिशियलाइज करते हैं मतलब क्या? नए से स्टार्ट करते हैं। उसमें कुछ एलिमेंट है क्या? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेंगे? दोनों पॉइंटर आपके कहाँ पे रहेंगे? -1 पे रहेंगे। इसकी साइज़ कितनी है? मैक्सिमम कितना है? 5 तक है। मतलब 0 1 2 3 4 5। टोटल एलिमेंट 6 है, लेकिन फ्रंट और रियर कहाँ पे है? -1 पे है। मतलब आपको दिख रहा है क्या अभी? नहीं। अगर कोई भी वैल्यू 0 पे होती तो 0 इज़ द लोकेशन, दैट इज़ द फर्स्ट लोकेशन। मे बी इट्स 0 बट इट इज़ द फर्स्ट लोकेशन. Then Q will be containing one element, but here there is no element, so pointer are before 0, that is 0 से पहले है। मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। अभी एन एम्प्टी क्यू हो गया। अभी हम लोग को क्या करनी है? इंसर्शन करना है। इंसर्शन करते हैं तो क्या करना है हम लोग को? एक रियर पॉइंटर को ऐड करना है। अभी एडिशन कहाँ पे होता है? हमेशा रियर पे होता है। रियर इज द पॉइंटर वेयर एडिशन इन अ क्यू टेक्स प्लेस। एडिशन करने के टाइम पे क्या करना है? एक याद रखो और अच्छे से, क्यू में देयर विल बी नो माइनस माइनस और नो माइनस ऑपरेशन। स्टैक में था एडिंग एन एलिमेंट, देन इट विल कॉल्ड एज अ टॉप प्लस प्लस, एंड एट द टाइम ऑफ रिमूविंग it will be top minus minus. But in case of q there will never be any operation like rear minus minus or q front minus minus. In case of deletion front will be increase, and in case of addition rear will be increase. So यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? रियर को बढ़ाना है। रियर पहले क्या था? -1 था, तो ऐड करते हैं उसमें 1, तो -1 + 1 क्या आता है? 0। मतलब 0 लोकेशन पे फर्स्ट एलिमेंट की एंट्री हो गई। यानी वो कौन सी एंट्री थी आपकी? 5। दिख रहा है सामने? पहला एलिमेंट कहाँ पे ऐड होगा? तो पुराने रियर में ऐड करो 1 से। तो रियर क्या था आपका? रियर था -1, -1 में एक ऐड किया तो हो गया +1। मतलब -1 + 1 0। 0 मतलब कुछ भी नहीं। तो 0 is the location in which new element will be added, and which element is there? It is 5. Now again see, now front is at the 0 only, because we have not deleted anything, or we have not decided to delete anything. Now we are going to add new element 9. Then what will happen? They have skipped all the steps and added 3 more elements, but I will make you clear. First now
we were at the 0, that is the rear pointer was at 0. Now we have to add 9. Then what will happen? Rear plus 1, but rear's value is 0. 0 plus 1, 1. So 9 is placed at the 0th position or first position. Then again what will happen? I have to add one more value. Then now the rear pointer value is what? 1. Now rear is equal to rear plus 1, that is 1 plus 1, it will be 2. So 2 will be added at the second position. Now rear, on the next addition I have to increase the rear and rear value is now 2. So 2 plus 1 it will be 3, and new value 3 will be added at the third element. Now if in case I am adding new value, then it will get placed into the new value, that is 3 plus 4, and here will be the value. Then next it will be the 5. But now we don't need to think on it. Now we will see how to delete. Remember, very first we have added 5, then we have added 9, then we have added 2, and then we have added 3. अगर ये स्टैक रहता तो सबसे पहले कौन रिमूव हो जाता? 3, then 2, then 9, and then 5. But this is not stack, this is queue, which is called as the FIFO, that is first in first out data structure. तो फर्स्ट में जो इन हुआ था वो रिमूव होगा, यानी कौन? तो सबसे पहले आपका 5, देन 9, देन 2, देन 3, ये होगा कहाँ पे? क्यू में. और अगर स्टैक रहता तो क्या होता? सबसे पहले आपका 3 जाता, फिर 2, फिर 9 और फिर 1 चला जाता आपका. ठीक है, अभी ये देखो, ये देखो, सबसे पहले जो 5 था, ठीक है, वो रिमूव हो गया. तो आपका फ्रंट पॉइंटर 0 पे था, -1 पे था. तो सबसे पहले फ्रंट को ऐड किया तो -1 + 1 क्या होता है? 0. तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा रिमूव हो गया? 0 पोजीशन पे था. 0 पोजीशन पे कौन था? 5 था, वो रिमूव हो गया. फिर नेक्स्ट क्या हो गया? उस मुझे नेक्स्ट एलिमेंट क्या कौन सा डिलीट करना है? इट विल गेट डिसाइडेड बाय द पॉइंटर of the front position. Now front is at 0. Now I have to think which element will be getting deleted. So 0 plus 1. Now the element to be deleted is decided by the location, but which location? 1. तो फर्स्ट लोकेशन पे कौन है? 9. तो 9 हो गया. अभी नेक्स्ट टाइम डिलीट कौन होगा? आपको सामने दिख रहा है कि प्रीवियसली फ्रंट पॉइंटर कहाँ पे था? फर्स्ट पे था. अभी नेक्स्ट लोकेशन डिलीट करनी है, वो कैसे करनी है? डिलीशन पे क्या बोला है हम लोग ने? क्यू में कभी भी माइनस नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? प्लस होगा. लेकिन प्लस किस में होगा? फ्रंट में होगा. तो फ्रंट पॉइंटर x से अभी कहाँ पे आ गया? सेकंड पोजीशन पे आ गया. नाउ द 2 विल बी टारगेट वैल्यू विच विल बी डिलीटेड. देन अगेन मुझे और भी डिलीट करना है, तो क्या करूँगा मैं? फ्रंट को और इंक्रीज करूँगा. तो फ्रंट अभी 2 पे है, तो अभी फ्रंट कहाँ पे चला जाएगा? 3 पे चला जाएगा. तो 3 नंबर के लोकेशन पे वैल्यू कौन सी है? 3 ही है, तो उसे डिलीट हो गया. अभी क्या हो गया? मेरा क्यू पूरा एम्प्टी हो गया. सो अभी के लिए इतना क्या दिमाग में बिठाना है आपको? क्यू इज अ linear data structure. It is also non-primitive because it contains primitive data elements or set of data, primitive data elements. There are 2 types of pointer. First is front and second is rear. Front is the pointer from where elements are deleted or getting removed, and rear is the pointer from where we add the element or we can insert the element. Upon the addition, or if we want to add the element, then there will be increment, but increment in whom? The increment will be in the rear pointer. And if we want to delete the element, then increment will be in whom? Front pointer. In case of Q, there will never be any front minus minus or rear minus minus. Okay, now we will see the C representation of a Q. जैसे हम लोग ने देखा था स्टैक में स्ट्रक्चर कैसे बनता है. किसका स्ट्रक्चर? तो स्टैक का. मतलब एक ढांचा कैसे बनता है, उसके अंदर क्या होना चाहिए?
ऑन अ सिमिलर वे, वी विल सी व्हाट इज क्यू। क्यू कैसे बनता है, क्यू के अंदर कौन कौन होता है। प्लीज चेक स्ट्रक क्यू, वहाँ पे स्ट्रक क्या था, स्टैक था। अभी यहाँ पे क्यू नाम का स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन वहाँ पे क्या था, खाली डिक्लेरेशन था, इतने साइज का स्टैक बनेगा और इतने एक टॉप पॉइंटर था। लेकिन यहाँ पे भी सेम है, खाली नाम बदली हुए। और थोड़ा लॉजिक लगाओ तो क्यू और क्यू की साइज, मतलब वहाँ पे स्टैक बना था, यहाँ पे कौन बना है, क्यू बना है। अभी इंट फ्रंट एंड इंट रियर, मतलब 2 पॉइंटर है, वहाँ पे कितना पॉइंटर था, एक ही पॉइंटर था टॉप के नाम से। तो इंट फ्रंट और इंट रियर, यहाँ पे क्यू, फ्रंट फॉर द डिलीशन एंड रियर फॉर द एडिशन। ईजी है ये, आपको 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द सी प्रेजेंटेशन ऑफ द क्यू। तो आपको क्या लिखना है, स्ट्रक्ट क्यू, या फिर आप क्यू की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो। तो स्ट्रक्ट मतलब स्ट्रक्चर, बता बोले एक स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या नाम से, क्यू नाम से। ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, in between opening and closing bracket what is there, there is a printing mistake but you will understand। int q size, q नाम का एक एरे जैसा बनाया है जिसकी साइज कुछ तो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन डेटा टाइप क्या है उसका, इंटीजर, मीन्स दिस क्यू विल होल्ड ऑल द इंटीजर वैल्यू। देन 2 pointers are there, फर्स्ट इज द फ्रंट एंड सेकंड इज द रियर। फ्रंट पॉइंटर क्या होगा, वहाँ से वैल्यू डिलीट होगी, और रियर क्या होगा, वहाँ से वैल्यू ऐड होगी। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑपरेशन ऑन अ क्यू, इतना आज देख लेते हैं ऑपरेशन ऑन अ क्यू। देखो सबसे पहले क्रिएट तो करना पड़ेगा, विदाउट क्रिएटिंग वी कैन नॉट ऐड, और वी आर अनेबल टू ऐड और रिमूव द डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। तो सबसे पहले क्रिएट अ क्यू, ऐड और इंसर्ट। तो ऐड एन एलिमेंट टू द क्यू, अ न्यू एलिमेंट कैन बी एडेड टू द क्यू एट द रियर। ऐड करना है तो मुझे किसके पास जाना है, रियर के पास जाना है। रियर के पास जाके क्या करना है, रियर को इंक्रीमेंट करना है 1 से। सेम इज डिलीशन, डिलीशन मीन्स रिमूव, उसको निकाल दो। तो निकालने के लिए क्या करना है, मुझे किसके पास जाना है, रियर के पास जाना है क्या, नहीं, तो किसके पास जाना है, मुझे फ्रंट के पास जाना है। लेकिन फ्रंट को या फिर रियर को, कुछ भी हो जाए, हम लोग को माइनस नहीं करना है, नहीं तो कभी कभी बोलोगे हाँ सर क्यों ईजी है, मैं रिमूविंग के टाइम पे क्या करता हूँ, तो क्यू में से फ्रंट को माइनस कर देता हूँ तो वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे नहीं, फ्रंट को हम लोग को आगे लेके जाना है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर क्यू कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, इन ऑल द केसेस हमेशा आपको इंक्रीमेंट ही करनी है। एडिशन करो तो रियर में इंक्रीमेंट करो, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, और डिलीशन करो तो इंक्रीमेंट किस में करो, फ्रंट में करो। अभी एक छोटा सा एल्गोरिदम जो क्या डिफाइन करेगा, एल्गोरिदम टू इंसर्ट अ डेटा इनटू क्यू। देखो सबसे पहले सेम लाइक स्टैक ऐड करना है तो चेक तो करना पड़ेगा उसके अंदर वैल्यू है कि नहीं है। अगर वो क्यू भरा हुआ है, चेक फॉर अ क्यू ओवरफ्लो कंडीशन, इफ रियर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स माइनस 1। अगर रियर पॉइंटर मैक्स माइनस 1 मतलब एंडिंग पॉइंट पे है, लास्ट में है एकदम, मैक्स मतलब एक वैल्यू बड़ी, 5 वैल्यू है तो मैक्स वैल्यू 6 दिखाएगा, तो 6 माइनस 1 मतलब 5th पोजीशन पे है, तो या फिर उससे बड़ा है, तो उसमें क्या है, रियर पॉइंटर आखिर में पहुंच गया, उसमें कोई जगह नहीं है। और अगर इफ देयर इज नो प्लेस इन क्यू देन वी कैन नॉट ऐड, देन वी हैव टू राइट द क्यू फुल कंडीशन। और फुल कंडीशन में हम लोग अगर उसमें वैल्यू ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। एल्स ऐसा नहीं है, मतलब वो फुल नहीं है, तो शायद उसमें एक जगह भी हो सकती है, 2 जगह भी हो सकती है, या फिर पूरा भी खाली हो सकता है। तो हम लोग को क्या करना है, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। हमेशा एडिशन में क्या करना है, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1। फिर जो नया एलिमेंट रहेगा उसे असाइन कर दो। कहाँ पे असाइन कर दो, कहाँ पे असाइन कर दिया हम लोग ने उसको, तो आपके रियर में, लेकिन रियर किसका है, वो क्यू का। किसे ऐड कर दिया है, न्यू एलिमेंट को असाइन कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे चेक कर दी किसके लिए फुल है कि नहीं, उसके बाद वो फुल है
तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर वो फुल नहीं है तो उसमें प्लेस है तो इंक्रीमेंट करो रियर को, क्योंकि रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, और क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग डेटा एलिमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, वेदर टू एल्गोरिदम टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ क्यू। सेम क्या करेंगे हम लोग, चेक फॉर ए एम्प्टी क्यू। वापस से स्टैक वाला लॉजिक लगाओ कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो उसमें डिलीट नहीं कर सकते थे, करते हैं तो अंडरफ्लो आता है। सिमिलर मैनर क्यू भी अगर एम्प्टी है, उसकी कंडीशन क्या है, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1, मतलब सब कुछ क्यू के बाहर है। जैसे इनिशियली एम्प्टी क्यू देखा ना हम लोग ने, वैसे अगर वैसा है तो उसमें रिमूव कर सकते हैं क्या, एक क्लासरूम में से मैं तुम सबको बाहर निकाल रहा हूँ, गेट आउट गेट आउट गेट आउट, और लास्ट में खाली तेजस बचा है, वो तेजस को भी रिमूव कर दिया, अभी क्लास में स्टूडेंट बचे हैं 0, तो उनमें मैं और किसी को डिलीट कर सकता हूँ क्या, नहीं। तो मैं यही पहले चेक कर रहा हूँ कि क्लासरूम खाली है कि भरी हुई है या फिर कोई भी है तो रिमूविंग ऑपरेशन पॉसिबल है। लेकिन कोई नहीं है तो मैं उसको रिमूव करूँगा, चलेगा क्या, नहीं, वो अंडरफ्लो का एरर आ जाएगा। और फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, अगर वो कंडीशन वैसे है तो क्यू इज़ एम्प्टी एंड अंडरफ्लो होगा। अगर वैसा नहीं है, मतलब उसमें एलिमेंट है, तो मैं रिमूव करना स्टार्ट करूँगा। और क्या याद रखना है हमें, रिमूव करो या ऐड करो, हमेशा हम लोग को पॉइंटर को प्लस प्लस करना है। अभी कौन सा पॉइंटर इंक्रीज होगा, तो रिमूविंग के पोजीशन वाला कौन सा है, फ्रंट, तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। फिर क्या होगा, एलिमेंट जो क्यू के फ्रंट में था उसे मैंने रिमूव कर दिया, एंड असाइन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू एंड रिटर्न, मतलब वो एलिमेंट को मैं वहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मतलब आज आप लोग ने क्या क्या देखा, स्टैक का थोड़ा प्रीवियस रिवीजन, फिर क्यू डेटा स्ट्रक्चर कैसे है, क्यू का एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, क्यू में कितने पॉइंटर रहते हैं, तो 2 पॉइंटर रहते हैं, फ्रंट और रियर। एडिशन होता है रियर से, डिलीशन होता है फ्रंट से। एडिशन करो या डिलीशन करो, हमेशा करनी एक ही चीज़ है, उनको इंक्रीमेंट करो बाय 1 से। एम्प्टी क्यू को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, भरे हुए क्यू में हम लोग वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। और सी रिप्रेजेंटेशन ऊपर क्यू देखा। अभी नेक्स्ट टाइम पे हम लोग नॉर्मल पूरा बड़ा प्रोग्राम देखेंगे, जैसे स्टैक में देखा था कि आपको क्यू बनाना है, क्यू में वैल्यू इंसर्ट करनी है, क्यू से वैल्यू रिमूव करनी है एट टाइम प्रेजेंट, वो टाइम पे क्यू में क्या वैल्यू है वो दिखानी है। ये सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हो, किसके साथ कम्युनिकेट करना है आपको मालूम है। थैंक यू।